Subcontracting process is a process in which a company provides raw materials to another company. That company uses those raw materials, produces a finished good, and resends that finished good back to the company who supplied the raw materials. And the company will pay for the other company for the charges that are incurred in the manufacturing process of those particular parts. This process is called as subcontracting process. तो सबकॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस क्या है? एक कंपनी दूसरे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, दूसरा कंपनी उस रॉ मटेरियल से या तो कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा या कोई सिंगल पार्ट है तो उस पर प्रोसेसिंग करके वापस वो फिनिश्ड पार्ट जो है वो सेंडिंग कंपनी को भेज देगा. दिस इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई स्टील का शीट है, बट उस स्टील शीट पे मुझे होल्स करना है. I don't have the facility to do holes on that particular steel sheet in my own company. So what I will do, I will transfer my steel sheets to one of the vendor who has that facility to do the holes on that steel sheet. So I will give a purchase order to that supplier for doing the holes on the steel sheet. That supplier, when the steel sheets are received, he will do the holes on that steel sheet and he will return that steel sheet back to me. And he will charge for the cost that he incurred for doing those holes on that steel sheet. Another is example, if I have a steel rod and I want to get threads done on that rod, I'll send the steel rod to him. He will do the threads and he will send me back threaded steel rod and he will charge me for whatever charges he incurred for doing the threads on that steel. Another example, मेरे पास टायर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो मेरे पास है, बट आई डोंट हैव assembly line for preparing those tires. So what I will do, I will send the raw materials to a supplier who makes the tires. He will manufacture the tire and provide me tire, and I will pay for the charges that he has incurred for assembling those tires. तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहाँ पे हम किसी सप्लायर को कुछ ऑपरेशन के लिए पार्ट्स दे देते हैं, वो उस पर कुछ ऑपरेशन करता है एंड जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमको रिटर्न कर देता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज subcontracting process. ठीक है. So we will see how the subcontracting process is carried out in SAP. So first we will understand the steps that needs to be followed in subcontracting process. तो जो first step है is create a subcontracting purchasing information report. Subcontracting PIR. It is mandatory. Second step is once the subcontracting PIR is created, we can create a subcontracting PO.
Now, how system will come to know that the purchase order created is a subcontracting PO? So we need to use item category L in the purchase order. Item category L. So item category L specifies that the purchase order is for subcontracting process. Now, when you enter the item category L, we need to maintain components or raw materials PO. तो जो रॉ मटेरियल्स हम सप्लायर को भेजने वाले हैं, दैट आल्सो वी कैन एंटर द परचेस ऑर्डर. या लाइन आइटम पे मटेरियल डेटा टैब में हम ऐड करते हैं. थर्ड, now when the PO is created and it is given to supplier, in this process we send raw materials or components to supplier. तो सप्लायर जब तक रॉ मटेरियल उसको मिलेगा नहीं तब तक वो वेट करेगा. सो वी नीड टू प्रोवाइड हिम कंपोनेंट्स. So the third step will be provision of components. How we do it? We do it using transfer posting. 541 movement type. So what is 541 movement type? So when we do 541, we transfer the raw materials to subcontractor. तो subcontractor को जब हम raw materials भेजते हैं तब हम 541 का use करते हैं. Now what happens at 541? We will see in some time. Now once you do a 541, provide the components to subcontractor. Subcontractor will manufacture the part that we need and he will deliver the finished part. Delivery of finished part. That's nothing but we will do a goods receipt of finished part against the purchase order. जो हमने PO दिया था उसके अगेंस्ट में हम finished part का goods receipt करते हैं. Now here two movement types are used. First is 101 and second one is 543 O minus. What is this 543 movement type and what happens at 543 movement type? We will see in some time. The next step is once you do the goods receipt, supplier will raise an invoice. For charges incurred in manufacturing / assembly / रॉ मटेरियल्स पे कुछ ऑपरेशन किया होगा या असेंबली किया होगा या मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, उसके लिए जितने चार्जेस उसको लगे उसका वो इनवॉइस हमको रेज करेगा. सो invoice is booked. So the next step will be invoice verification in our system, then payment as per the agreed payment terms.
Okay, so clear है? Understood? Yes, sir. So subcontracting process is nothing but अशी प्रोसेस ज्याच्यामध्ये आपण सप्लायरला रॉ मटेरियल्स प्रोव्हाइड करतो, तो त्या रॉ मटेरियल्सचा यूज करून एक फिनिश प्रोडक्ट बनवेल किंवा त्याच्यावरती काही प्रोसेसिंग करायची असेल तर प्रोसेसिंग करेल, तो फिनिश प्रोडक्ट आपल्याला परत करेल आणि जेवढे काही चार्जेस त्याचे असतील त्याच्यासाठी तो इनवॉइस रेज करेल. दिस इज कॉल्ड एज subcontracting process. Now we will see in system how to execute this subcontracting process. Now याच्यामध्ये आणखीन एक पॉइंट आहे, there is one more point here that we can use BOM. BOM can be used in subcontracting process. But it's not mandatory. So we'll see an example of using BOM as well. First we will see without BOM, then we will see with BOM as well. BOM is bill of material. Let me create two materials. Okay, so what we will do is we will create a material which will be our raw material, and let us suppose this is a steel rod. स्टीलचा रॉड आहे, तो आपण सप्लायरला पाठवणार आणि त्याच्यावरती थ्रेड्स करून परत घेणार. ठीक आहे. सेकंड मटेरियल विल बी again raw material. We can use the material type as raw material or finished material type, and it will be like threaded steel rod. So this part we will send to supplier. Supplier will do the threading on that part and he will return the threaded steel rod back to us. So we will create two materials, 1 and 2, and then we will execute the subcontracting process. Select here raw material type, sorry, mechanical and raw. आणि
Okay, so I have created two materials, 306 and 307. 306 is our raw material and 307 is what we are going to receive from the supplier. Now, as per these steps mentioned, the first step is to create a subcontracting purchasing information record. So we will create a subcontracting purchasing information record. Now, while creating the subcontracting purchasing information record, we need to select here subcontracting because we are going to do a subcontracting process and this PIR will be used in the subcontracting purchasing order. Now, what we need to keep in mind here. So what is the material that we are going to order from the vendor? This is the material that we are going to order from the vendor, 307, that is threaded steel rod. We are supplying this material to supplier and we are receiving this product threaded steel rod from the supplier. So 307 is what I am ordering to the supplier. Supplier को मैं ये order कर रहा हूँ. So we create a info record for the part that we are ordering to the supplier. तो यहाँ पे 307 होना चाहिए, ठीक है, 306 नहीं. So we are going to order this part. So this part we should specify here, purchasing organization and plant. Now, in normal purchasing information record that we use for stock material procurement, when we enter any part here in purchasing information record, we enter the price of that material that is agreed with the supplier. Okay? But in subcontracting process, when you maintain this purchasing information record, we are not entering the price of this finished product. We are entering the subcontracting charges charged by the supplier. एक स्टील रॉड पे थ्रेड करने के लिए अगर उसको 200 रुपए लगते हैं तो वो चार्जेस हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 200 रुपीज. वी आर नॉट एंटरिंग दी price of this 307 part. We are not purchasing this part from the supplier. हम सप्लायर से इस पार्ट को परचेस नहीं कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको एक रॉड दे रहे हैं विदाउट थ्रेड और वो उस पर थ्रेड करके हमको वापस कर रहा है. तो वो जो थ्रेड्स कर रहा है उसके चार्जेस हम उसको पे करने वाले हैं. तो वो थ्रेडिंग के जो चार्जेस है पर पीस, दैट वी विल एंटर इन दिस इन्फो रिकॉर्ड. Now suppose 200 rupees. So I entered here 200 rupees, enter and save. So a subcontracting purchasing information record is created. You can see here L. L means it is a subcontracting PIR. So once the subcontracting PIR is created, now we can create the subcontracting PO. ME21N, enter the supplier here, purchasing organization, purchasing group, AGCO. Enter the material here. What is the material that we are going to order? This is the material that we are going to order, finished part. How much quantity? Let us suppose 100, plant AGP2. हमने PIR तो मेंटेन किया है बट अभी तक यहाँ पे प्राइस आया नहीं बिकॉज हमने अभी तक आइटम कैटेगरी L का यूज नहीं किया है. सो अगर हमने आइटम कैटेगरी L नहीं डाला, सो दिस इज अ नॉर्मल PO. मीन्स वी आर परचेसिंग दिस मटेरियल फ्रॉम दिस वेंडर. तो अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है तो उसमें आइटम कैटेगरी L का यूज करना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग. So when you enter item category L, then only system comes to know that this is a subcontracting purchase order. And now you can see from the purchasing info record, system has determined the price 200 per each. Now you go to material data tab and here in components you can enter the component. इस मटेरियल को रिसीव करने के लिए हम कौन सा रॉ मटेरियल सप्लायर को सप्लाई कर रहे हैं, दैट वी नीड टू स्पेसिफाई हियर. 306, कॉपी इट एंड
ठीक है, तो 100 थ्रेडेड स्टील रॉड के लिए 100 स्टील रॉड्स हमको उसको भेजना पड़ेगा 1 to 1। तो बॉम्ब में भी यही होता है। व्हाट इज बॉम्ब? बॉम्ब इज अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल कितना कितना क्वांटिटी लगता है, दैट इज व्हाट इज मेंटेन इन द बॉम्ब। ठीक है, नाउ गो बैक, चेक एंड सेव द परचेस ऑर्डर, योर पीओ इज रेडी। Purchase order is created. Okay. Now once the purchase order is created, we need to do provision of components. हमको supplier को components भेजने हैं, तो उसके लिए सिस्टम में दिखाना पड़ेगा हमको कि हमने सप्लायर को कुछ क्वांटिटी भेजा है, राइट। सो कंपोनेंट्स भेजना है मतलब इस मटेरियल को भेजना है। इस मटेरियल को अगर हमको इशू करना है तो इसका स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। एंड इफ वी सी, वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस मटेरियल, so there is no stock available for this material in our system, no stock available. So how we can do the provision of components? Supplier को हम कैसे भेज सकते हैं? So first we need to generate a stock for this material. So I will use here 561 movement type to generate the stock. कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी। AGP2 स्टोरेज लोकेशन अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, पोस्ट डेट। तो मटेरियल मास्टर में 10 रुपए मैंने मूविंग एवरेज प्राइस मेंटेन किया था, उसके हिसाब से इसका अकाउंटिंग होगा। स्टॉक अकाउंट में वैल्यू इंक्रीज हो गया 2000 रुपए, एंड ये इन्वेंट्री टेकिंग में 2000 रुपए माइनस चले गए। नाउ वी कैन सी द स्टॉक फॉर दिस कॉम्पोनेंट। 200 रुपए, 200 क्वांटिटी, सॉरी। ठीक है, सो 200 quantities are available in stock now. Now we can do provision of components to supplier. Now to do the provision of components, there are two ways. Either we can use MIGO, so we can go to MIGO transfer posting, and here we will select purchase order. Enter the PO number. Movement type is 541. Goods issue warehouse to subcontracting stock. तो वेयरहाउस से हम क्वांटिटी निकाल के सप्लायर को भेज रहे हैं फिजिकली, and system में we are doing a transfer posting with movement type 541. So here you can see transfer posting from and destination. So कहाँ से मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं? ये मटेरियल है, ये प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन SL01, जहाँ पे 200 क्वांटिटीज है, वहां से हम 100 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन इज मटेरियल दिस, प्लांट इज दिस। तो ये मटेरियल, ये प्लांट, ठीक है, एंड parts provided to vendor O, and this is the vendor code. क्या मतलब है इसका? सिस्टम में वी आर डूइंग अ मूवमेंट 541, तो यहाँ से स्टॉक चला जाएगा 100 क्वांटिटीज। कहाँ से? AGP2 प्लांट स्टोरेज लोकेशन 01 SL01 से 100 क्वांटिटीज माइनस होगा, और वो हमको कहाँ पे डिस्प्ले होगा? AGP2 प्लांट में ही डिस्प्ले होगा एज पार्ट्स प्रोवाइडेड टू वेंडर with special stock indicator O. So this special stock indicator O is nothing but
फिजिकली वो मटेरियल सप्लायर के पास है, बट उसका ओनरशिप हमारे पास है। हमने प्रोसेसिंग के लिए कुछ पार्ट सप्लायर को दिए हैं जो अभी फिजिकली सप्लायर के पास है, बट उसका ओनरशिप हमारे पास है। दैट इज आइडेंटिफाइड एज स्पेशल स्टॉक, ओ सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक, और पार्ट्स प्रोवाइडेड टू वेंडर। वेंडर को जो दिया हुआ क्वांटिटी है वो हमको एमएमबी में पार्ट्स प्रोवाइडेड टू वेंडर करके दिखाई देता है, एंड इट इज स्टोर्ड विथ स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर ओ। ठीक है, नाउ लेट मी चेक पोस्ट इट फर्स्ट एंड देन वी विल सी आइटम। ओके, चेक। तो यहाँ पे डाला हुआ है, तो कौन से सप्लायर को हम ये दे रहे हैं क्वांटिटीज, दैट वी नीड टू स्पेसिफाई। पोस्टेड, display it, and here no accounting document will be generated। accounting document generate नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। द रीजन इज हमने पार्ट्स वेंडर को प्रोसेसिंग के लिए दिए हैं, सेल नहीं किए हैं। सो उसका जो वैल्यू है, जो भी पार्ट्स हमने सप्लायर को दिया है, उसका वैल्यू अभी भी हम लोग ही ओन करते हैं। दैट इज ओन्ड बाय द सेंडिंग कंपनी। सो इफ यू execute it now, you can see 100 quantities are available in SL01। यहाँ पे पहले 200 था, अभी 100 हो गया, और 100 क्वांटिटीज कहाँ पे गया? प्लांट लेवल पे स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर। फिजिकली अभी वो हमारे स्टोरेज लोकेशन में नहीं है, फिजिकली वो हमने सप्लायर को दिया। तो प्लांट लेवल पे 100 क्वांटिटीज जो है हमको पार्ट्स प्रोवाइडेड टू वेंडर में दिखता है, बिकॉज द ओनरशिप इज स्टिल विद अस। नाउ इफ यू चेक दिस डिटेल डिस्प्ले, यू कैन सी हियर कि कौन से सप्लायर को हमने दिया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू डू अ 541। तो 541 पे क्या होता है? 541 पे ओनली मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड एंड नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। नाउ हमने क्या किया? कंपोनेंट्स हमने सप्लायर को दिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सप्लायर विल डू द मैन्युफैक्चरिंग। सप्लायर उस रॉड्स पे थ्रेड्स करेगा, और थ्रेड होने के बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट थ्रेडेड स्टील रॉड का डिलीवरी हमको करेगा। नाउ वंस द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एट आवर गेट, वी विल डू द गुड्स रिसिप्ट। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी goods receipt against the purchase order. Now there is one more transaction to do the transfer posting 541। जो हमने 100 क्वांटिटी का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, उसके लिए मीगो की जगह पे एक और ट्रांजैक्शन कोड भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ME2ON। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉकपिट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ME2ON। सो इफ वी एग्जीक्यूट इट, यू कैन सी हियर अगेंस्ट दिस PO 100 क्वांटिटी का ट्रांसफर पोस्ट, 100 क्वांटिटी का हमको क्या करना था? गुड्स इशू करना था। तो ऑलरेडी हमने 100 क्वांटिटी यहाँ पे इशू किया है, दैट इज व्हाई वी सी हियर इन ग्रीन। तो मीगो से किया जा सकता है, या फिर यहाँ से भी हम उसको पोस्ट कर सकते हैं, ME2ON सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉकपिट। तो कुछ नहीं, यहाँ पे PO लाइन को सिलेक्ट करना होता है एंड क्लिक ऑन पोस्ट गुड्स इशू, एंड देन यू कैन एंटर द क्वांटिटीज एंड क्लिक ऑन क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो उससे भी सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, नाउ वी विल डू द गुड्स रिसिप्ट। गो टू मीगो, गुड्स रिसिप्ट, purchase order, enter the PO now। PO is not yet released, we need to release this PO first। 29N
So when we do the goods receipt, we can see both the products here. So this threaded steel rod we are receiving, and this steel rod is also displayed in the screen. Why? That we will see now. So threaded steel rod, this is the finished product that we are receiving from the supplier. So here we can update the quantity of the threaded steel rod. कितना quantity हम receive कर रहे हैं? 100 quantity receive कर रहे हैं. Second is where we are receiving this. So plant AGP2 storage location SL01 में ही हम इसको receive करेंगे. Now this is for the finished part. Okay. तो फिनिश्ड पार्ट का 100 क्वांटिटी हम रिसीव कर रहे हैं प्लांट AGP2 स्टोरेज लोकेशन SL01 में. Now when we receive this finished part, this threaded steel rod which we supplied to the supplier, हमने सप्लायर को 541 मूवमेंट के साथ ये 100 क्वांटिटी इशू किया था. किसका? रॉ मटेरियल का. Now when the finished material is received, that raw material that we sent to supplier is no more existing. वो जो स्टील रॉड्स हमने उसको दिए थे 100, उसको थ्रेड करके 100 के 100 उसने हमको रिटर्न किए. तो अभी वो स्टील रॉड एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है. सो वेयर इज दैट स्टील रॉड? इट इज कंज्यूम्ड इन थ्रेडेड स्टील रॉड. जो थ्रेड्स उसने बनाए वो उसी स्टील रॉड पे बनाए, तो उसका कंजम्पशन हो गया. अभी वो स्टील रॉड एग्जिस्ट नहीं करता है. सो ये जो 100 क्वांटिटीज हमने यहाँ पे दिखाया है जो सब कॉन्ट्रैक्टर के पास है, जब हम फिनिश्ड पार्ट को रिसीव करेंगे तो ये जो हम बोल रहे थे कि सब कॉन्ट्रैक्टर के पास है, सो व्हेन वी रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, these quantities does not exist at सब कॉन्ट्रैक्टर नाउ. ये सब कॉन्ट्रैक्टर के पास अभी नहीं है. क्या हो गया? इसका कंजम्पशन हो गया. ये यूज हो गए. किसमें यूज हो गए? वो थ्रेडेड स्टील रॉड में यूज हो गए. सो व्हेन वी रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट का रिसिप्ट होता है, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और कंजम्पशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज पोस्टेड. तो कंपोनेंट्स कंज्यूम होते हैं, उनका कंजम्पशन पोस्ट होता है. तो कहां से होता है? स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर. स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर में ये जो 100 क्वांटिटीज हमने दिखाया है, ये अभी 0 होना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर के पास क्वांटिटीज नहीं है, वो कंज्यूम हो गया. तो इट इज द कंजम्पशन इज पोस्टेड फ्रॉम स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर. तो ये 0 हो जाता है और उसका वैल्यू कंजम्पशन अकाउंट को पोस्ट किया जाता है. द मूवमेंट टाइप यूज्ड इज 543O माइनस. सो 543 इज अ कंजम्पशन मूवमेंट. गुड्स इशू फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक. तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर का स्टॉक हमने 541 पे जनरेट किया था कि इतना क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्टर के पास पड़ा है, वहां से हम गुड्स इशू पोस्ट कर देते हैं. तो ये 100 क्वांटिटी का गुड्स इशू होगा, ये 0 हो जाएगा और उसका वैल्यू जो है वो कंजम्पशन अकाउंट को पोस्ट होगा. चेक इट एंड यू कैन पोस्ट द गुड्स मूवमेंट. PSV, इस ट्रांजैक्शन की को अकाउंट नहीं मिल रहा है. कंटिन्यू. 3003 कोई GL वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे है नहीं. So I'll just use the same. So 3000. Now you can post it. FRL.
Okay, so goods receipt is posted, and now we can see what happens at goods receipt. Now check the stock of component. So when I refresh this will become 0, so this will go away. तो 100 क्वांटिटी का जो है वहां से कंजम्पशन हो गया। अभी सप्लायर के पास हमारा कोई भी क्वांटिटी नहीं पड़ा है। इफ वी सी द फिनिश्ड प्रोडक्ट 307, इसका क्वांटिटी 100 से इंक्रीज होगा बिकॉज वी हैव डन द गुड्स रिसिप्ट, तो इसका क्वांटिटी 100 से इंक्रीज हो गया। नाउ इफ वी गो टू द material document and display the accounting document, now here you can see the accounting entries. Okay, so how the accounting is done here, that we will try to understand. Now this third entry, BSX and GBB, which you see 1000 rupees credit to stock account and 1000 rupees debit to GBB, or this is a consumption account. So this is for your raw material consumption that happened at the time of goods receipt. हमने 100 क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया था एंड मटेरियल मास्टर का मूविंग एवरेज प्राइस 10 रुपीज है। सो 10 इंटू 100, 1000 रुपीज उसका स्टॉक में से वैल्यू माइनस हो गया और वो क्या हो गया, उसका कंजम्पशन हो गया, तो कंजम्पशन अकाउंट में पोस्ट हो गया। अभी इसके डिस्क्रिप्शन पे मत जाओ, ये जीएल अकाउंट मैपिंग यहाँ पे गलत है, अदरवाइज ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन का अकाउंट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है रॉ मटेरियल के कंजम्पशन के लिए लास्ट 2 एंट्रीज है। नाउ दिस वन, BSX इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 21,000, सो दिस इज फॉर योर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमने रिसीव किया। इसका वैल्यू 21,000 कैसे आया, या सिस्टम ने इसको 21,000 कैसे कैलकुलेट किया। 200 रुपीज जो है हमारा, सॉरी 20,000 रुपीज इज आवर पीओ प्राइस, 20,000 रुपीज, बिकॉज पर पीस हमने 200 रुपए परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में प्राइस मेंटेन किया था। सो 200 इंटू 100, 20,000 बिकम्स आवर पीओ प्राइस, राइट। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस कितने हैं, 20,000 रुपए टोटल 100 क्वांटिटीज के। तो वो 20,000 रुपए प्लस ये जो 1000 का कंजम्पशन हुआ रॉ मटेरियल का, वो इसी में ऐड किया गया, इसीलिए ये 21,000 रुपीज हो गए। तो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ, रॉ मटेरियल का प्राइस प्लस सर्विस चार्जेस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, सो 20,000 रुपीज यहाँ पे प्लस हो गए। पीओ का प्राइस 20,000 रुपीज था, तो वो GRIR अकाउंट में 20,000 रुपीज माइनस हो गए। नाउ दिस 20,000 रुपीज इज परचेस्ड सर्विसेज, वेंडर से हमने क्या सर्विस लिया, 20,000 रुपीज का अमाउंट, सो दैट इज पोस्टेड हियर। एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन का जो GL है वो BSV को असाइन है, विच इज रॉन्ग। तो ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है ये नहीं होना चाहिए था, ये चेंज ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग का अकाउंट होता है, उसमें 21,000 रुपीज माइनस होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो GL अकाउंट है ये गलत मैप हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमको कंजम्पशन का GL अकाउंट दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन पे मत जाइए, अंडरस्टैंड दिस कीज। सो दीज आर द ट्रांजैक्शन कीज दैट आर डिटरमाइंड इन द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो ये BSX और WRX जो है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो अमाउंट है that is posted to stock account of finished product is sum of subcontracting charges plus जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो 1000 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ प्लस 20,000 रुपीज सब कॉन्ट्रैक्टिंग के चार्जेस, that becomes 21,000, that price is added to stock account of finished product। पीओ का प्राइस 20,000 है, तो GRIR अकाउंट में 20,000 रुपीज माइनस गए, because at the time of invoice that will be knocked out of, then
चेंज ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस दिस BSV, तो ये 21,000 जो है इसको नॉक ऑफ करने के लिए, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस की वजह से 20,000 स्टॉक अकाउंट में इंक्रीज हुआ, वो दिखाने के लिए 20,000 रुपीज यहाँ पे माइनस होते हैं। हमने सप्लायर से कितना वैल्यू लिया, सॉरी सप्लायर को से कितने अमाउंट का सर्विस लिया, 20,000, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस सब कॉन्ट्रैक्टिंग entries are posted. Now the next step will be your Miro. You do a invoice and then you do a payment. तो इनवॉइस के टाइम पे क्या होगा, इनवॉइस के टाइम पे नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज होगा। सप्लायर को 20,000 रुपए पे करना है, कॉपी द PO, एंटर द PO, पोस्टेड। ओके, इसका मीरो भी पोस्ट हो गया। यू कैन चेक द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। 22,400 टोटल सप्लायर को देना है इंक्लूडिंग टैक्स, और 20,000 से GRIR क्लियर हो गया। And then as per the agreed payment term, supplier will be paid. So this is how the subcontracting process is executed. ठीक है, tomorrow we will see इसमें अंडर कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन होता है तो वो कैसे पोस्ट किया जाता है, and then we will see consignment process tomorrow.